everyone, I hope you all are fine and safe. My name is Kathar Patres and I am your maths teacher. Today we are going to chapter number 3, exercise number 3.1, page number 50. Duration of this lecture is 20 minutes. So let's start the chapter number 3, exercise number 3.1. Everyone, so today we are going to page number 50. I can. So there is a picture Azimuth Park and ticket counter. You have to see this picture Azimuth Park and ticket counter. After that, let's understand the table of this given. So there is a first day, second day and third day some data values. Okay. So first day there is a ticket sold by Azimuth Park. So there is a 96 children buy tickets. After that first day they money earned 672 rupees. Okay. After that second day there is a ticket sold by the Azimuth Park is 101 and money earned by Azimuth Park is 808. After that third day ticket sold by the Azimuth Park is 61 and money earned by Azimuth Park is 549. Okay, so it's a basic data of Azimuth Park, ticket sold and money earned. Okay, so using this data we have to solve some problems. So let's see some questions. So question number 1 is that if there were 150 tickets in each booklet, then calculate the tickets left at the end of the day. Okay, so there is a first day, second day and third day difference. So नाउ क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें करना क्या है कि यहाँ पे एक बुकलेट है, मीन्स जो टिकट्स होती है ना वो सोल्ड करते हैं, बेचते हैं टिकट्स। तो जो टिकट्स का जो बंडल होता है उसके अंदर 150 टिकट्स होती है। ओके, तो वो 150 टिकट में से कितनी टिकट सोल्ड हुई, तो यहाँ पे फर्स्ट डे 96 चिल्ड्रंस ने यहाँ पे टिकट्स बाई की, तो कितनी लेफ़्ट रहती है, मतलब कितनी बचती है वहाँ पे फर्स्ट डे के एंड में, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें कितनी टिकट्स बची है वो फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। ओके, सो यहाँ पे 150 माइनस 96, तब हमें हमारा डिफरेंस मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ऑलरेडी किया हुआ है 150 माइनस 96, तो यहाँ पे 54 टिकट्स लेफ्ट है, मतलब कि यहाँ पे 54 टिकट्स बची हुई है। ओके, तो सेम एज हमें सेकेंड डे भी करना है। तो यहाँ पे 150 में से सेकेंड डे, तो यहाँ पे सेकेंड डे 101 टिकट सोल्ड हुई है। ओके, तो हमें क्या करना है 150 माइनस 101। ओके, सो लेट्स डू इट। ओके, सो देयर इज अ सेकेंड डे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 150 एंड माइनस 101। ओके स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमाइंड, हमें यहाँ पे बिगर वैल्यू पहले लिखनी है और स्मॉलर वैल्यू उसके बाद। बिगर वैल्यू पहले आएगी अपर साइड एंड लोअर साइड हमारी स्मॉलर वैल्यू आएगी। ऑलवेज हमें ये रिमाइंड याद ही रखना है प्रॉपरली। ओके, सो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जो ये हमारी वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं, तो अभी आपको मुझे आंसर देना है वीडियो को पॉज करके। ओके ओके, सो आपको पता चल गया होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिनी एंड्स। ओके, मिनी एंड्स। और इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारा सेकेंड वैल्यू है हमारी उसको हम बोलेंगे सब्ट्राहैंड। ओके, इट्स कॉल्ड सब्ट्राहैंड। और जो हमारा लास्ट में आंसर मिलेगा वो होगा हमारा डिफरेंस। Okay, so let's start the sum. Okay, 0 minus 1. So we cannot subtract 0 minus 1 because 0 is a smaller value and 1 is a bigger value. So now what we do? So now we are using the borrowing method. Okay, so nearest number we have to borrow the number. Okay, so there is a 5
So 5 is the neighbor of 0. So we get the borrow from 5. Okay, so 5 is become 4 and 1 borrow. Okay, so 0 become 10 and 5 become 4. Okay, now 10 minus 1. So 10 minus 1 is 9. Okay, now 4 minus 0. So 4 minus 0 is 4. Okay, now 1 minus 1. So 1 minus 1 is 0. Okay, so there is a difference 49. It's called difference. Okay, difference. It's called median, subtrahend and difference. I again revise this sum. 150 minus 101. Okay, so first of all there is a 0 and 1. So we cannot subtract 0 minus 1 because 0 is a smaller value and 1 is a bigger value. So we have to using the borrowing method from neighbor. So 5 is a neighbor of 0. So 5 become 4 and given one number to 0. So 0 become 10 and 5 become 4. Now we have to subtract 10 minus 1. So 10 minus 1 is 9. Then after 4 minus 0 is equal to 4 and 1 minus 1 is equal to 0. So answer is 49. Okay. ओके नाउ डे 3. सो यहाँ पे हमें थर्ड डे का डिफरेंस फाइंड आउट करना है. सो देर इज़ अ 150 माइनस 61 बिकॉज देर इज़ अ थर्ड डे वैल्यू इज़ अ 61. सो 150 माइनस 61. ओके, सो देर इज़ अ थर्ड डे. सो वैल्यू इज़ 150 minus 61. Okay, so let's start. So there is a one's values. So 0 minus 1. So 0 minus 1 we cannot subtract. Okay, because 0 is a smaller number and 1 is a bigger number. So what we do, we borrowing from neighbor. So 5 is the neighbor of 0. Yes, so 5 become 4 and 1 give it to 0. Okay, so 0 become 10. Now 10 minus 1 is equal to 9 and 4 minus 6. We cannot subtract 4 minus 6 because 4 is a smaller number and 6 is a bigger number. Cannot subtract 4 minus 6. So there is a again using the borrowing method. So we have to borrowing by neighbor. So there is a 1. So 1 is become 0 and 1 give it to 4. So 4 become 14. Okay, now 14 minus 6. 14 minus 6 is a 8. So there is a 8. So answer is 89. Because there is a 0, so there is also 0. Okay, now answer is 89. So if you want to know it's a right answer or wrong answer, which method you are using, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपका आंसर है वो राइट है या रॉन्ग आपको चेक करना है तो आप कैसे करोगे. तो मैंने आपको बताया था 89 प्लस इन दोनों में से जो भी स्मॉलर वैल्यू होगी उसको आपको ऐड करना है. ओके, सो लेट्स चेक. सो देयर इज़ अ 89 प्लस यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है 61. सो 61. ओके, नाउ वी हैव टू ऐड दिस नंबर. 9 plus 1 is equal to 10. So there is a 0 and 1 carry out. Okay, now 8 plus 1 9 and 9 plus 6 is equal to 15. So there is a 150. So answer is same. Yeah, answer is same. So answer is right. Okay, आप इस तरह से चेक कर सकते हो. Okay, so question number 2. There was a target to earn rupees 950 each day. Calculate the difference in the money earned and the targeted earning for each day. Okay,
सो इट मीन्स यहाँ पे उन लोगों का टारगेट था 950 रुपीज़ ईच डे का, कि यहाँ पे हम इतना अर्न करेंगे। बट यहाँ पे अर्न होता कितना है, तो उन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट डे वहाँ पे 672 रुपीज़ अर्न हुए हैं। बट उन लोगों का टारगेट था कि हम यहाँ पे 950 रुपीज़ अर्न करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमें क्या करना है, 950 माइनस 672। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट डे कलेक्शन है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। ओके, सो 950 माइनस 672. So let's start. Okay, so there is a 950 minus 672. Okay, so let's subtract this number. Okay, so there is a medians, subtrahend and difference. Okay, so first of all we have to start with ones place. So there is a 0 minus 2. So we cannot subtract 0 minus 2 because 0 is a smaller value and 2 is a bigger value. So we cannot subtract 0 minus 2. So what we can do, we can borrow the neighbor. So हमारा जो neighbor है वो 5 है। सो 5 के पास से हम एक नंबर बोरो कर लेंगे, तो जो 5 है वो हमारा हो जाएगा 4। तो ये जो 5 है वो हमारा हो गया 4, और यहाँ से उसने एक नंबर दिया 0 को, तो जो 0 था वो बन गया हमारा 10। अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। ओके, नाउ 4 minus 7, so we cannot subtract 4 minus 7 because 4 is a smaller number and 7 is a bigger number. So what we do, now we have to again borrowing the number from neighbor. So 9 is a neighbor of 5, so 9 become 8 and 1 borrow, so 4 become 14. So 14 minus 7, so 14 minus 7 is 7 and 8 minus 6 is equal to 2. So 278 is a difference. So यहाँ पे जो फर्स्ट डे का कलेक्शन था उसमें से यहाँ पे 278 का डिफरेंस मिला है हमें। उसका टारगेट था 950 का, बट हमने यहाँ पे फर्स्ट डे 672 ही मनी अर्न किया है, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो हमारा 278। ओके, नाउ सेकेंड डे बी, तो आपको ये होमवर्क में करना है। सेकेंड डे आपको होमवर्क में करना है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू थर्ड डे। ओके, नाउ थर्ड डे, सो यहाँ पे ओके, सो लेट्स सी थर्ड डे। सो यहाँ पे जो थर्ड डे मनी अर्न हुआ है वो हमारा हुआ है 549। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सो 950 माइनस 549। ओके, सो लेट्स डू इट। सो देयर इज अ थर्ड डे, 950 माइनस 549। ओके, so it's called minion, then after subtrahend, and answer is difference. Okay, so let's start with the ones value. Okay, so 0 minus 9, so you know better कि हम लोग 0 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास अगर कुछ है ही नहीं तो उनमें से हम कुछ माइनस कैसे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ से हम लोग कभी भी माइनस नहीं कर सकते। सो हमें क्या करना है, हमें नंबर्स को बोरो करना पड़ेगा अपने नेबर से। सो 0 का नेबर है 5, तो हम 5 से यहाँ पे एक नंबर बोरो करेंगे। सो 5 बिकम अ 4 एंड 1। ओके, सो यहाँ पे जो 0 था वो बन गया है 10। ओके, नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 10 minus 9 is equal to 1. Okay, and now 4 minus 4 is equal to 0. After that
9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4. ओके, बिकॉज जो 9 है वो हमारा बिगर नंबर है और 5 जो हमारा है वो स्मॉलर नंबर है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. बट अगर यहाँ पे कोई स्मॉलर नंबर होता तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं. ओके, सो आंसर इज 401. ओके, सो हमारा जो थर्ड डे का कलेक्शन है उसका जो डिफरेंस है वो यहाँ पे 401 है. ओके, okay, good. Now question number 3, find the difference in the earning between the two given days. So there is a day 1 and day 2. So let's see. So यहाँ पे day 1 जो है वहाँ पे हमने 672 रुपीज़ अर्न किए थे और सेकेंड डे 808 रुपीज़. ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे हायर वैल्यू पहले लिखनी है और लोअर वैल्यू उसके बाद. 808 जो है वो हमारी हायर वैल्यू है, मतलब कि यहाँ पे बिगर वैल्यू, और यहाँ पे 672 है जो वो हमारी स्मॉलर वैल्यू है. तो हमें इसी तरह से नंबर्स को अरेंज करके लिखना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3A. ओके, सो डे 1 and day 2, so we have to difference. Okay, so there is a question number 3, day 1 and day 2. So there is a day 1 and day 2. So 808 minus 672. Okay, so there is a value of day 1 and day 2. It's a day 2 value and it's a day 1 value. ओके, हमने यहाँ पे डे 2 की वैल्यू को ऊपर लिखा है बिकॉज इट्स अ हायर वैल्यू, और यहाँ पे डे 1 की वैल्यू को हमने नीचे लिखा हुआ है बिकॉज ये स्मॉलर वैल्यू है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, so there is a 6. now 0 minus 7, बिकॉज हम 0 minus 7 नहीं कर सकते, so we can borrow the number. so there is a 8, so 8 becomes 7 and there is a 1. Okay, so 10 minus 7 is equal to 3 and 7 minus 6 is equal to 1. Okay, so its answer 136. अभी हमें ये चेक करना है कि ये जो हमारा आंसर है वो राइट है या रॉन्ग. तो हमें क्या करना है, हमें जो हमारा आंसर मिला है, जो हमारा डिफरेंस है, उसमें हमें क्या ऐड करना है, स्मॉलर वैल्यू. ओके, सो लेट्स ऐड 136 प्लस इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है, ये वाला. ओके, सो 672. एडिशन के अंदर आप कोई भी वैल्यू कभी भी लिखो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यहाँ पे हमने स्मॉलर लिखा है, उसके बाद हमने हायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट सब्ट्रैक्शन के अंदर फ़र्क पड़ता है, हमने प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखा था. ओके, सो 6 plus 2 is equal to 8. then after 3 plus 7 is equal to 10, so there is a 0 and 1 carry out. Okay, 1 plus 1 2 and 2 plus 6 is equal to 8, so 808. so also there is a 808, so answer is correct. Okay, so इस तरह से हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3B and C in your homework. ओके, क्वेश्चन नंबर 3B and C in your homework. आपको सिर्फ डे 2 एंड डे 3 का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, देन आफ्टर डे 3 एंड डे 1 का डिफरेंस फाइंड आउट करना है. ओके,